Hello everyone, it's Shivashish Banerjee once again from Infinite Learning Hub, and today we are going to discuss respiration, the process of energy release. Well, आज हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन बोला था. So after nutrition, the next process is respiration. Let's start with the discussion today. Okay, so respiration, the process of energy release, it's the converting the chemical energy of food into usable currency of life. Basically, it's the process of way to release energy in our body so that our body could work. So this respiration is termed as cellular respiration. It happens in the cell of our body, cell of any living body. This respiration of us is different from breathing. Both breathing and respiration are important to life, but this respiration is kind of different from breathing. Okay, so let's move on. What is respiration and its necessity? So let's move on to the definition first. Respiration is a complex enzyme catalyzed catabolic process where simple food substances like glucose are oxidized to release energy. ये मीन कर रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम कैटलिस्ट प्रोसेस है जहाँ पर एंजाइम यूज होता है फूड को डाइजेस्ट करने में. जैसे आप लोग न्यूट्रिशन में पढ़े हैं कि फूड डाइजेशन होता है तो उससे एनर्जी मिलता है. तो वही बात है यहाँ पर. जो फूड जैसे ग्लूकोज, हम लोग का बेसिक फूड जो ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन होता है तो उस ग्लूकोज से हम लोग का एनर्जी मिलता है. उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं यहाँ पर. फिर और आपको अगर और सिंपली जानना है तो रेस्पिरेशन इज हाउ योर बॉडी यूजेस फूड एंड एयर टू मेक द एनर्जी यू नीड टू लीव एंड प्ले. हाँ, तो वही बात मैंने जो बोला कि हमारा बॉडी फूड को यूज करता है और एयर दोनों यूज करता है. ऑक्सीजन और फूड दोनों यूज करके हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी पे. इस प्रोसेस का नाम रेस्पिरेशन है. यहाँ पर जो मैंने पहले बोला कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में एक डिफरेंस है. इट इज ऑफन कंफ्यूज विथ ब्रीदिंग बट इट इज ए सेलुलर प्रोसेस ऑकरिंग इनसाइड ए सेल. जो मैंने पहले बोला कि रेस्पिरेशन वो सेलुलर प्रोसेस है और सेल के अंदर होता है. whereas breathing is an external process. वो लंग्स में होता है. हम लोग by our nose we intake the air, it goes to our lungs. We take oxygen, we breathe out carbon dioxide. That is breathing. And the cellular process occurring inside the cell is respiration. So what is the goal of respiration or what is the necessity of respiration? Its goal is to generate ATP, adenosine triphosphate. ATP is another source of energy or another name for energy in our body, the immediate energy source for all life activities, movement, growth, photosynthesis, etc. This is important. You should note it down that the necessity of respiration is to generate ATP in our body. So रेस्पिरेशन का मेन गोल यही है कि ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करता है. ग्लूकोज तोड़ के ग्लूकोज को मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज को यूज करके फिर ऑक्सीजन को यूज करके वो सब यूज करके वो एटीपी रिलीज करता है सेल के अंदर. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है. सो क्योंकि उससे हम लोग का एनर्जी जनरेट होता है हम लोगों के सेल में, जो आफ्टर ऑल हम लोग के बॉडी में लगता है, हम लोग के मूवमेंट में लगता है, ग्रोथ में लगता है, प्रोटीन सिंथेसिस में लगता है, बहुत कुछ में लगता है. सो इतना तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. यू कैन नोट इट डाउन. दिस इज द डेफिनेशन. इट्स a bit standard. This definition is a bit standard. This is a simple definition. You could note it down. This is important where breathing and respiration are involved. So you should note it down that breathing is different and respiration is different. Both are interrelated, but they are
kind of different. Okay, and this is the goal or necessity of respiration. So let's move on. This is a rough diagram of cellular respiration. Its credit goes to AI, generated through AI. So it's a inside a cell. This occurs as glucose goes down. It breaks down with the help of uh, oxygen and carbon dioxide and whatever. There we'll discuss it later on. And from glucose, that ATP is released inside the cell for that ATP is released as energy inside the cell. So वही हम लोग बोल रहे हैं कि पहले जो बोला ग्लूकोज तोड़ के एटीपी होता है ये सेल के अंदर काम चल रहा है. हाँ, तो वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ ब्रीदिंग वर्सेस सेलुलर रेस्पिरेशन. हम लोग अभी ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखेंगे. फर्स्ट डिफरेंस है फीचर. फीचर यहाँ पर देखते हैं. फीचर जैसे प्रोसेस ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. ब्रीदिंग को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नली हो रहा है. और सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. ये इन डेप्थ में जा रहा है. हाँ, तो you should note it down also. So breathing is an external process and cellular respiration is an internal process. Whenever the question comes through via respiration, so you shouldn't make it like आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन ये सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहा है या ब्रीदिंग बोल रहा है. ओके, सो पहले हम लोग फीचर देखेंगे. फिर फीचर में आता है ब्रीदिंग एक्सटर्नल, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. फिर प्रोसेस ब्रीदिंग हम लोगों का आता है फिजिकल या मैकेनिकल में, और सेलुलर रेस्पिरेशन आता है बायोकेमिकल या केमिकल में. जहाँ पर केमिकल लगता है वो रेस्पिरेशन होने में. हाँ, सो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पर. सो ये प्रोसेस है. साइट कहाँ पर ये होता है, मतलब कहाँ पर ब्रीदिंग होता है, कहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. तो साइट ब्रीदिंग होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे लंग्स इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. हाँ, गिल्स इन फिशेस and skin in some amphibians. They go through skin, and respiration occurs by cytoplasm and in cytoplasm and mitochondria. Okay, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल. यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है. एटीपी जो एनर्जी है हम लोगों का. और ब्रीदिंग में होता है हम लोग का लंग्स में होता है. गिल्स हम लोगों का लंग्स में होता है. फिशेस का गिल्स में होता है. बहुत एम्फीबियंस का स्किन के थ्रू होता है. फिर एनर्जी ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता. वो सिर्फ सांस लेता है, लेने का काम करता है और सांस फेंकने का, मतलब इंटरनल एंड इट्स द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इट्स जस्ट टेकिंग इन द एयर एंड रिलीजिंग द एयर. ओके, and in respiration, in cellular respiration, this energy is released. Then the mechanism में क्या होता है कि ब्रीदिंग में intake of oxygen and release of carbon dioxide होता है. और whereas cellular respiration में होता है कि oxidation of glucose. ऑक्सीडेशन में मतलब ग्लूकोज का तोड़ना, टूटना, या जो भी आप समझ सकते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, वो रेस्पिरेशन में होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है. ओके, आई होप इतना तक आप लोगों को समझ आ गया. या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. आपको ये आपका इम्पोर्टेंट है. ये आता है कभी कभी क्लास 10 का एग्जाम्स में, या फिर कभी कभार हायर एजुकेशन में भी आता है ये सब. सो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेजेस के थ्रू ये समझाया कि ब्रीदिंग मतलब एक्सटर्नल प्रोसेस है. ये लंग्स में होता है, सांस लेते हैं, बाहर का लंग्स यूज होता है. वायरस रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. हाँ, सो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, एटीपी रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज अंदर घुस रहा है, वो सब रेस्पिरेशन में होता है. लेट्स कंटिन्यू. अभी होता है टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. हाँ, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें दो मेन टाइप होता है. एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन.
अभी हम लोग जानेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब डिफरेंस क्या है, और इन शॉर्टकट में हम लोग समझ जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आएंगे एरोबिक और एनारोबिक में। पहले आता है एरोबिक का फीचर, ऑक्सीजन। हाँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन लगता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होने में और करने में। व्हेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई ऑक्सीजन नहीं लगता। In aerobic respiration, presence of oxygen, and in anaerobic respiration, there is no requirement of oxygen. Another feature is breakdown. In aerobic respiration, complete oxidation of glucose happens. See, this aerobic respiration and anaerobic respiration occurs inside a cell. Okay, since it's a cellular respiration, both of them occurs inside the cell. Got it? And that's continue now. So breakdown in aerobic respiration is glucose, and anaerobic respiration is not complete breakdown of glucose, but the partial or incomplete breakdown of glucose. See, in aerobic respiration, the glucose breakdowns completely. Okay, completely to give energy, to produce energy. Whereas in aerobic respiration, the glucose doesn't break down completely. It's an incomplete oxidation of glucose. Okay. That's another feature is end products of aerobic respiration is carbon dioxide and water. It releases carbon dioxide and water. In end product releases or results in carbon dioxide and water. Whereas anaerobic respiration, it produces lactic acid or ethanol or and carbon dioxide. Well, one thing you should know, lactic acid is where you get fatigue, or after working out sometime there is lactic acid release in your muscles and body which makes you fatty. And yeah, that is anaerobic respiration. Okay, energy in aerobic respiration, energy yield is high. एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका एनर्जी यील्ड बहुत हाई होता है, और 36 या 38 एटीपी तक वो मतलब रिलीज करता है एनर्जी। और एनर्बिक रेस्पिरेशन में वो लो है, वो 2 एटीपी तक ही वो रिलीज कर सकता है, और वो लो है, आपका बॉडी में एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं करता। वेयरएज एरोबिक में आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो आप लोग ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक क्विक मेथड है एरोबिक और एनोबिक रेस्पिरेशन के लिए। इफ इट नोट इट डाउन, if those who want to learn it a bit faster, this method is easier to learn. आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फिर जैसे मैंने ये एक रफ डिस्क्रिप्शन है, जैसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ से होता है। एक एआई जनरेटेड इमेज है, वो मैं बाद में आप लोगों को कोई और वीडियो में समझाऊंगा आपको कैसे एआई वीडियो जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे वो बाद में मैं दिखा दूंगा, अभी ये कंप्लीट करते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक सेल के अंदर हो रहा है, बहुत सारा एटीपी रिलीज हो रहा है, 36 एटीपी रिलीज हो रहा है। Whereas एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम लोग का बॉडी को फेटिक करता है। फेटिक मतलब टायर्ड करता है वो। हाँ, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर कोई काम करने के बाद हम लोग का बॉडी टायर्ड हो जाता है, तो ये इस लैक्टिक एसिड के लिए होता है। ओके, अभी आता है एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, द कंप्लीट पाथवे। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, आप एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे पे के लिए जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। पहले डिस्क्रिप्शन आते, डेफिनेशन आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। Aerobic respiration is the process of cellular respiration that occurs in the presence of oxygen to generate energy or ATP. Energy means ATP is adenosine triphosphate from food molecules like glucose. It is the most common and efficient form of energy production in most living organisms. ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये मोस्ट कॉमन एंड एफिशिएंट फॉर्म है एनर्जी प्रोडक्शन का बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो यहाँ पर आते हैं हम लोग पाथवे में। अभी वो जो स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन,
पहला वाला है ग्लाइकोलाइसिस। ये होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस मतलब वो जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो होता है ना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो वो होता है occurs in cytoplasm of the cell। फिर ग्लूकोज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। ग्लूकोज जो 6 कार्बन है वो 3 कार्बन में ब्रेकडाउन होता है 3 3 करके, और वो रिलीज करता है 2 ATP करके वो रिलीज करता है। हाँ, वो बाद में वो मतलब 2 ATP से रिलीज करना स्टार्ट होता है और बाद में जाके बढ़ता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, वो जो ये जो स्टेप है, ये आपका एरोबिक और एनोबिक रेस्पिरेशन में सेम है। तो यहाँ पर 2 ATP से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका आता है क्रेब साइकिल, जो है साइट्रिक एसिड साइकिल। वो एक साथ होता है। ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2, और ये है फाइनली आपका स्टेज 3। गॉट इट। ये जो स्टेज 1 है, ये बहुत एरोबिक और एनोबिक में होता है, और एनोबिक में थोड़ा डिफरेंट होता है ये वाला चीज, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ग्लाइकोलाइसिस आप देख लिया ग्लाइकोलाइसिस, अभी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पर साइट्रिक को लगता है ओकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे इतना, आपको सिर्फ जानना पड़ेगा। ये बाद में ये हायर एजुकेशन में आता है। बाद में मैं और डिटेल्स में जाऊंगा। फिर अभी के लिए जान लेते हैं क्रेब साइकिल का दूसरा नाम साइट्रिक एसिड साइकिल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर पाइरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है और completely is released। यहाँ पर एनर्जी होगा, एनर्जी छूट गया, ब्रेकडाउन completely एंड दिस इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एटीपी इज रिलीज्ड। ओके। दूसरा तीसरा है स्टेज 3, जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ईटीसी। हाँ, तो ये है तीसरा और आखिरी स्टेज। यहाँ पर होता है occurs on the inner membrane of the mitochondria। ये देखिए, ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। हाँ, अंदर मतलब inside the mitochondria, these happens inside of mitochondria, all these three happens inside of mitochondria। Okay, the second process of electron transport chain is uses oxygen as the final electron acceptor, and the third is generate the bulk of ATP। मतलब जो maximum energy है वो यहाँ पर generate होता है और release होता है यहाँ से। ओके। हाँ, अभी मूव ऑन करते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल है, फिर भी आप लोग अगर लोअर क्लासेस में इतना नहीं आता। लोअर क्लासेस में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, कहाँ पर होता है, ये इतना तक ही आता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, वो आपको हायर जैसे क्लास 11 क्लास 12 में जाके ये आपको जानना पड़ता है। हाँ, okay, so let's move on to the next one that here this is the cellular respiration energy production। जो मैंने बोला, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतना सारा चीज होता है। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पर क्रेब साइकिल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर हो रहा है आपका क्रेब साइकिल, यहाँ पर हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी हो रहा है। ये एक एआई जनरेटेड इमेज है। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग गलत भी रह सकता है, क्योंकि एआई जनरेटेड इमेज को मतलब प्रॉब्लमेटिक है, एक साथ नहीं होता। ये भी होगा ये, तो एआई जनरेटेड इमेज में थोड़ा स्पेलिंग गलत भी रह सकता है, आप लोग खुद से देख लेना थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये एक रफ डिस्क्रिप्शन है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। हाँ, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ से 2 ATP रिलीज होता है। आफ्टर 2 ATP, यहाँ पर 2 ATP के बाद क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। यहाँ से क्रेब साइकिल स्टार्ट होते 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 फिर ये जाता है आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पर जाके आपका फाइनली 32 ATP तक रिलीज होता है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन और बोथ वाटर रिलीज होता है आपका फाइनल एंड प्रोडक्ट में। गॉट इट। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। मतलब जैसे फर्मेंटेशन क्या है, यीस्ट बनाना या फिर इथेनॉल बनाना, वो सब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में गिरता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ए फॉर्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही मेन डिफरेंस है बोथ एरोबिक और एनारोबिक का। अगर आपका क्वेश्चंस में आया व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में
ऑक्सीजन का प्रेजेंस है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं। एंड इज यूज टू जनरेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो करता है ग्लूकोज से, जो 2 ATP के नीचे होता है या फिर 2 ATP होता है इसको। दिस प्रोसेस इज लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन बट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड जनरेट एनर्जी इन ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट। ये साधारणतः जैसे जहाँ पर ऑक्सीजन का कमी है या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये दिखाई देता है हर बहुत समय, या हायर ऑर्गेनिज्म में कभी दिखाई नहीं देगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। कभी कभार जैसे लैक्टिक एसिड, जैसे यहाँ पर एक बोला है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर्स इन मसल सेल्स, ये एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये हम लोग का मसल में दिखाई देता है जब हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग का मसल ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं मिलता तब ये लैक्टिक एसिड हम लोग का यहाँ पर रिलीज होता है, जो हम लोग को टायर्ड कर देता है, समझे। So lactic acid fermentation occurs in muscle cells during intense exercise when oxygen supply is insufficient. जब हम लोग का मसल में ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट हो जाता है तब लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है यहाँ पर। ओके, फिर पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, यहाँ पर जो पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल फैटिग, जो मैंने पहले बोल रहा था, जो जितना लैक्टिक एसिड आपका बिल्डअप होगा इतना आपको फैटिग होगा, इतना आप टायर्ड फील करोगे, इतना आप एनर्जी मतलब नहीं मिलेगा आपको एनर्जी, समझे। दूसरा आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये होता है ऑर्गेनिजम्स ईस्ट में, जैसे ऑकर्स इन ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट। ईस्ट जो ब्रेड वुड बनाने में लगता है, जो फंगस टाइप का है, वो ईस्ट है। फिर है पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू इथानॉल, ये अल्कोहल में क्रिएट होता है और यूज्ड कमर्शियली इन ब्रूइंग एंड ब्रेड मेकिंग। ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एक वन टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस ऑकर्स इन organism like yeast and this is commercially used in brewing and bread making. Brewing मतलब दारू बनाने में लगता है या और ब्रेड मेकिंग में लगता है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक ग्राफ डायग्राम कि लैक्टिक एसिड यहाँ पर मसल में हो रहा है। लैक्टिक एसिड यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हुआ, इसलिए यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। In insufficient oxygen, muscle cell converts pyruvate to lactic acid, causing fatigue. Okay, lactic acid causing fatigue. ये भी generated है। ओके, एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में, जो मतलब फर्मेंटेशन हम लोग बोलते हैं, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये जैसे ग्लूकोज को मतलब ग्लूकोज मतलब पाइरुवेट को ये इथानॉल में कन्वर्ट करता है और करके लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और रिलीज करते हैं। 2 ATP या कभी भी एनर्जी नहीं भी रिलीज होता है, वो दारू बनाने में लगता है, वाइन क्रिएशन में लगता है और बेकिंग में लगता है, जैसे केक बनाना, ब्रेड बनाना। वहाँ पर ये बनाना मतलब वो बनाना नहीं है, बेकिंग बनाना मतलब होना, तैयार करना। थोड़ा हिंदी मेरा कच्चा है इसलिए। सो इट्स मेकिंग ऑफ ब्रेड और मेकिंग ऑफ cake, and brewing is like making of wine or alcohol. Those are used commercially. Okay, now let's come to respiration in plants. Okay, plants breathe too, but differently. Now coming to plants perform respiration, uses food all the time. Okay, plant उसका food हर समय यूज करता है, constantly, just like animals for energy, but they also perform photosynthesis, makes food in the day. देखिए यहाँ पर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों इंटरलिंक्ड है। फोटोसिंथेसिस दिन में फूड बनाता है, वही फूड ये प्लांट पूरा दिन रात एक करके वो उसका रेस्पिरेशन करता है, मतलब उसका एनर्जी क्रिएट करता है वो फोटोसिंथेसिस यूज करके। तो फर्स्ट स्टेप आता है गैस एक्सचेंज, occurs primarily through stomata on leaves and lenticels on stems. स्टोमाटा वो गार्डिंग सेल्स बोलता है लीव्स का, और लेंटिसल्स वो स्टेम में मिलता है। यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है आपका प्राइमरीली। हाँ, तो
ये दूसरा वाला है ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन which is often used immediately for respiration. Excess is released. Okay. And the third is at night photosynthesis बंद हो जाता है क्योंकि sunlight नहीं मिलता. Photosynthesis stops. Plant continue to respire, taking in oxygen and releasing carbon dioxide. वही बोलते हैं रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है, इसलिए कभी कभी भी रात को प्लांट मतलब ट्री के नीचे मत सोना. डोंट स्लीप नियर ट्री. There will be less oxygen and more carbon dioxide as tree releases carbon dioxide at night, so that they could respire, they could use the food that they made at day to create more energy for them at night. So that's the entire process. The gas exchange occurs during the day and at night. That's how plant breathe and respire too. In here you can see that it's stomata in the leaves. Here gas exchange happens. Here oxygen comes in and CO2 gets released through the leaves. And here is photosynthesis versus respiration. Both are interlinked, but they are different. One is a day process where it takes in, where it makes the food, and another is a night. Another is a all day process. Okay, the respiration is a all day process. It happens in the day, also it happens in the night. Okay, it happens in the night. Because if it doesn't work at night, how can a plant survive? The plant can't survive. Okay, it needs energy all the time. It respires at night also. It's an all day process. Got it? Then respiration in simple and aquatic organisms and insects. अभी आता है कि जैसे प्लांट तो सांस ले लिया, ह्यूमन भी सांस लेना जानता है, कैसे लेता है, कहाँ लेता है, क्यों, कैसे होता है, वो तो आप लोग को जानते ही है. फिर सिंपल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है. सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जैसे उन लोगों का वो लोग कैसे लेता है यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे ऑर्गेनिजम्स हैव एडेप्टेड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट. वो लोग कैसे अपना एनर्जी क्रिएट करता है, जैसे एमोइबा या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म. गैस एक्सचेंज ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्टली अक्रॉस द सेल सरफेस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. ये अपना सेल के ऊपर ही कर लेता है, सेल के अंदर ही कर लेता है. ये इसको डिफ्यूजन बोलता है. दूसरा है फिश जो एक्वाटिक एनिमल्स में गिरता है, वो अपना गिल्स यूज करता है. उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं. गिल्स or both gills have a vast surface area and are highly vascularized to extract dissolved oxygen from water. और ऑक्सीजन लेता है वाटर से, उसको यूज करता है और फिर उसी ऑक्सीजन को यूज करके वो अपना एनर्जी भी क्रिएट करता है, सब कुछ करता है. वो गिल्स के थ्रू होता है. ये गिल्स इंपॉर्टेंट है. एमोइबा में गैस एक्सचेंज होता है. और फाइनली इंसेक्ट्स में होता है वो ट्रेकिया के थ्रू इन लोगों का रेस्पिरेशन होता है. हाँ, तो use a system of tubes called trachea, tracheal respiration that delivers oxygen directly to the tissue, bypassing the circulatory system. Got it? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रेस्पिरेशन. ये ग्राफ इमेजेस है. ये सब ये मोइबा में कैसे होता है. ये ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है. हाँ, CO2 छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है. फिर जैसे फिश में होता है, ये गिल्स के थ्रू ये वाटर से मतलब ऑक्सीजन सकिंग करता है, फिर गिल्स के थ्रू इसका बॉडी में जाता है, फिर ये रिलीज करता है. हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं O2 एंटर्स, फिर वाटर फ्लोज हो रहा है, ये एफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन जा रहा है अंदर. फिर ये आता है इंसेक्ट में जैसे ये ग्रासहोपर में आप देख सकते हैं, या फिर लोकस्ट में, ये लोकस्ट या ग्रासहोपर जो भी है, इसका यहाँ से और इसका बॉडी के ऊपर से ट्रेकी होल्स होता है, वहां से जाता है. ये CO2 आउट हो रहा है, एयर इन हो रहा है, CO2 आउट हो रहा है. आप ये देख सकते हैं. अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो रेस्पिरेशन, ये अभी जो हम लोग ने देखा, आप लोग को थोड़ा कॉन्फ्यूजन हो सकता है. ये जो यहाँ का जो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, वो दो चीज एक साथ मीनिंग कर रहा है. ये ब्रीदिंग भी बोल रहा है और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों एक साथ हो रहा है. ओके, यहाँ पर जो बोला है रेस्पिरेशन इन सिंपल एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स,
यहाँ पर भी वो ब्रीदिंग वाला भी बोल रहा है, या और अपना ब्रीदिंग के थ्रू ही ये सब रेस्पिरेशन होता है। अब मैंने पहले भी बोला ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इंटरलिंक्ड है, सेम नहीं है बट इंटरलिंक्ड है ये सब। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या है, वो कैसे ब्रीथ करता है, वो कैसे सांस लेता है, यहाँ पर इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलता है। इसको ब्रीदिंग के थ्रू किस साइड से होता है, जैसे द ह्यूमन सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड टू एफिशिएंटली ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ब्लड। ये जो प्रोसेस का जो सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी देखते हैं हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है। जैसे नॉस्ट्रिल्स नेसल पैसेज, एयर इज फिल्टर्ड, वार्म एंड मॉइस्चर्ड। ओके, मतलब नाक नाक से हम लोगों का एयर फिल्टर होके घुसता है, गर्म होता है, मॉइस्ट होता है, फिर पास होता है। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, विंड पाइप उसको एपिग्लोटिस भी बोलते हैं, जो दो पाइप रहता है यहाँ पर। हाँ, ये आपका रहा फूड पाइप और ये रहा आपका विंड पाइप। विंड पाइप जो आपको लंग्स में जाता है और ये जो आपका स्टोमक में जाता है। तो यहाँ पर एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग्स रहता है। जैसे आप सांस लेने के समय ये खुल जाता है और खाने के समय ये बंद हो जाता है। ओके, उसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो पेरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो जब एयर पास होता है तभी हम लोग का वॉइस निकलता है। आपका वॉइस अगर लैरिंग्स आपका ठीक रहा तो आपका वॉइस अच्छा निकलेगा। लैरिंग्स में अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो आपका वॉइस भी खराब या आपका कुछ डैमेज वॉइस निकलेगा। तो ये रहा आपका सेकंड सिस्टम। थर्ड सिस्टम है आपका ट्रेकिया, जो आपका विंड पाइप जो मैंने बोला अभी, ये विंड पाइप है। लाइंड विथ कार्टिलेज रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्स। और मतलब जैसे यहाँ पर कार्टिलेज, छोटा छोटा कार्टिलेज से वो प्रोटेक्टेड रहता है। फिर उसके अंदर से आपको विंड जाता है, मतलब एयर जाता है। फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो ट्यूब्स है ब्रांच इनटू द लंग्स। जैसे लंग्स के अंदर रहता है ना, ऐसा ऐसा अब शाखा है, जैसे पेड़ का शाखाएं रहता है ना, ऐसा ऐसा शाखा है, उसको हम लोग ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ट्यूब ब्रांच टू द लंग्स। और बाद में आता है एल्वियोली और एयर सेक्स। यहाँ पर ये फाइनल स्टेज है आपका गैस एक्सचेंज होने में, जहाँ पर हम लोग का अल्टीमेट साइट है गैस एक्सचेंज होने में। तो आप लोगों ने क्या देखा अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोस्ट्रिल्स नेसल पैसेज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वियोली। गॉट इट। अभी आप लोग बोलेंगे कहाँ होता है, ये तो आप लोगों को जानना है, मतलब यू नो इट वेरी वेल, इट हैपेंस इन द लंग्स। सो that's it about human respiratory system here. Human respiratory system passes from nose, lungs and alveoli, जैसे नाक से जाता है, यहाँ पर नेसल कैविटी है, यहाँ पर कहीं पे नेसल कैविटी है, यहाँ पर जो एक जाता है आपका ट्रेकिया है, विंड पाइप है, ये है आपका विंड पाइप। यहाँ पर जाता है, ये यहाँ से यार घुसता है, यहाँ होके यहाँ पे, ये होके यहाँ पे यार आके ये आपका लंग्स में घुस रहा है। ये आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है। क्या से क्या ये हाँ, ये लेफ्ट लंग से राइट लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग, दिस इज राइट लंग, दिस इज there are like the bronchioles, that's the branches are known as bronchioles. Okay, and this is the alveoli where the gas exchange occurs. This O2 and CO2 they get exchanged and are passed. That O2 is taken to the blood and CO2 is released from the body. Got it? And another important is that in here there is a differentiation, मतलब यहाँ पर एक डिफरेंट, जैसे लंग्स और नीचे का जो ऑर्गन्स है उन लोगों को डिवाइड करता है, उसका नाम है डायफ्रागम। और आपको आप लोग कैसे उसको वो करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, मैं डायफ्रागम बोलता हूँ। तो डायफ्रागम यहाँ पर रहता है, वो आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफरेंशिएट करता है, ये डायफ्रागम। ओके, फिर आता है जो इम्पोर्टेंट अल्टीमेट साइट, गैस एक्सचेंज एट द एल्वियोली, द फंक्शनल यूनिट alveoli. Okay, the alveoli are the most crucial structure for the exchange of gases.
Okay, the most reinforced structure है gases के लिए structure. Each lung contains millions of tiny balloon-like alveoli. ये balloon-like alveoli हर lungs के अंदर होता है ये balloon-like alveoli. हाँ, फिर the exchange. Alveolar walls are extremely thin and surrounded by dense network of blood capillaries. वो कैपिलरीज के थ्रू ही आपका ऑक्सीजन आना जाना होता है, ब्लड के अंदर जाता है ऑक्सीजन. तो oxygen diffuses from the high concentration air in the alveolus into the capillary blood. Carbon dioxide diffuses from the high concentration blood into the alveolus air. Okay. जो ब्लड में हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरी होके एल्वियोलस में आता है, फिर एल्वियोलस होके वो बैकवर्ड करके फिर हम लोग वो रिलीज करते हैं. वेयर ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर में जाके एल्वियोलस होके वो एल्वियोल के अंदर वो एक्सचेंज होता है, फिर वो कैपिलरी होके ब्लड में चला जाता है. तो यहाँ इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक्सचेंज occurs purely by the process of diffusion based on concentration gradients. ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एयर का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके ये प्रोसेस डिफ्यूजन होता है. मतलब डिफ्यूजन मतलब डिवाइड होता है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. ये एल्वेओली गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, फंक्शनल यूनिट क्या है, इम्पोर्टेंट है. एल्वेओली वाला इम्पोर्टेंट है. जैसे एक एग्जांपल है कि जो लोग स्मोक करते हैं उन लोगों का क्या होता है, जो एल्वियोली जो होता है ना वो डैमेज हो जाता है, उसके लिए वो लोग सांस नहीं ले पाते. वो लोग का मतलब ऑक्सीजन वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको अभी, तो एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि वो स्मोक करते करते उन लोगों का जो एल्वियोलार है एल्वियोली है वो सब डैमेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसका आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही थीन होता है. जितना बैड अमाउंट का आप लोग स्मोक करोगे वो इतना आपका डैमेज करेगा. फिर जाके अल्टीमेटली आपका क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा. अगर स्मोक ज्यादा किया लंग्स कैंसर नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको शायद इतना डैमेज होगा कि आप सांस नहीं ले पाओगे. आपको फाइनली you have to take the oxygen, to lose the way to take the oxygen. You have to use mechanized oxygen, like you have to take the oxygen by your mask or oxygen mask or those things. So stay away from smoking. Okay, it's harmful to your lungs, to your body. So आपको अभी देखा ही दिया, तो ये एक्सचेंज जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है. ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर गैस एक्सचेंज एल्वियोली से एल्वियोलार है, ये एल्वियोलार है, ये एल्वियोली है, ये एल्वियोलार है और ये एल्वियोली है. यहाँ पर जो ये जो कैपिलरी है ना, ये जो ब्लड कैपिलरी, हाँ एल्वियोली, ये जो एल्वियोली ये है एल्वियोली. ओके, और कैपिलरी ये है. तो ये O2 और CO2 जो एक्सचेंज होता है ना, ये यहाँ से आके कैपिलरी होके एक्सचेंज होता है. गॉट इट. फिर हम लोग का फाइनली आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लिंकिंग रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये हम लोग का फाइनल में हम लोग आगे. अभी देखिए रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों सेम है, क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन में जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन को छोड़ के आप जो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में होता है ना, वो तो आफ्टर हम लोग का ब्लड में जाता है. तो वो तो रेस्पिरेशन वो है ट्रांसपोर्टेशन. तो यहाँ पर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंटरलिंक्ड है. ओके, ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग वेस्ट. पहला वाला है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, ए रेड पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल. ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन टू बी कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू. दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. Most is transported in the blood plasma as dissolved carbonate ions, and a small amount binds directly to the hemoglobin. और तीसरा है link. This vital link ensures that every cell in the body receives the oxygen necessary for cellular respiration. ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो रेस्पिरेशन से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन कलेक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है. ये ट्रांसपोर्टेशन के होप से ये ट्रांसपोर्ट होके जाता है आपका सेल्स में. हाँ,
सेल्स में जाके आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। वो जो रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग करके जो ऑक्सीजन मिलता है, और फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, वो बीच का जो लिंकेज है वो है ट्रांसपोर्टेशन। वो हम लोग बाद में, मतलब अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखते हैं कंक्लूजन ऑफ रेस्पिरेशन सेक्शन, द क्रूशियल लिंक टू लाइफ। समरी में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन इज द एनर्जी इंजन दैट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिशन into the kinetic energy ATP required for movement, transportation, growth and all other processes. सो ये और एक शॉर्टकट में डेफिनेशन है, मतलब जो मैंने पहले इतना समय बोला, इतना समय डिस्कस किया कि क्या है, क्यों है, कहाँ हो रहा है। तो ये सिंपल एक ही वर्ड में है, रेस्पिरेशन इज द एनर्जी इंजन। मतलब वो एक एनर्जी जनरेटिंग इंजन है रेस्पिरेशन, जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग न्यूट्रिशन से मिलता है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करता है, मतलब कन्वर्ट करता है, और एटीपी क्रिएट करता है, जो रिक्वायर्ड होता है मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ और अदर प्रोसेस के लिए, उसी को रेस्पिरेशन बोलता है। ओके, की कॉन्सेप्ट है लाइफ स्टॉप्स व्हेन सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप्स। गॉट इट? सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप मतलब आपका सेल में सेल काम करना बंद कर रहा है, सेल डिग्रेड हो रहा है, सेल मर रहा है। तो आपके अगर सेलुलर रेस्पिरेशन बंद हो गया तो आपका लाइफ साइकिल भी स्टॉप हो जाएगा, खत्म, दी एंड हो जाएगा आपका लाइफ का। ओके, सो ये रहा आपका द क्रूशियल लिंक टू लाइफ रेस्पिरेशन सेक्शन। मेरा अपकमिंग वीडियो होगा ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने 2 स्लाइड पहले बोला कि जो लिंक करता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग विथ टू सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्लड वेसल कैसे ब्लड में वो करता है, मूवमेंट करता है, सब कुछ वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर गिरता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, और ओके, आई होप दैट you liked this video. Please share and subscribe for more upcoming biological videos. I will probably mostly upload biology videos, but I will try to upload other science videos also. So since it's a new channel, it will take some time to get acclimatized also, but I will try to release videos as soon as possible. So my next video will be transportation, and see you in the next lecture, discussion, whatever the class, or knowledge gathering event. Okay, I hope you like this one, and please give us a lot of like, share, and please subscribe a lot more, so that I will get the energy to upload new videos, to create new videos. Thank you so much.